A very good morning, children. Today we will start our session with the poem Amanda. So, this poem basically depicts the dilemma of a teenage who feels herself that her freedom is curtailed by her mother, since posing too much restriction always generate a feeling of insecurity, indulgence, and trouble among them. Consequently, she likes to remain in solitude. We should not forget the excess of everything is bad. So in this poem, it is written by Robin Klein, and what she has described that she has described that the dilemma, एक ऐसी मेंटल कंडीशन एक बच्चे की दिखाई है जिसमें वो जो है अपने माता पिता के रेस्ट्रिक्शन के कारण वो जो है एकांत में रहना चाहती है, हर चीज़ में रेस्ट्रिक्शन जिसकी वजह से उसे ये लगता है कि जो उसकी जो वो है फ्रीडम है उसको जो है छीन लिया गया है उससे. So that's why what happens, she wants to remain in solitude. And so further we'll read out in this poem. So let's start with the first stanza. Don't bite your nails, Amanda. Don't hurt your shoulder. Amanda, stop that slouching and sit up straight, Amanda. सो जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें जो है पोइटस ने ये डिस्क्राइब किया गया है कि अमांडा को सीधे बैठने के लिए कहा गया है, उसे नाखून नहीं काटने के लिए कहा गया है, कंधों उसके जो कंधे हैं वो उसको मोड़ने या झुकाकर बैठने के लिए बंद करने के लिए कहा जाता है, और इन सब के बावजूद उसे स्ट्रेट बैठने के लिए कहा जाता है. देन देयर इज़ अ लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So in the next paragraph, next stanza, वो जो है ऐसी ग्रीन ओशन सी के बारे में डिस्क्राइब करती है जहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल जो है निष्क्रिय है, लेकिंग विगर है, कोई किसी तरह की हलचल नहीं है उस पानी में, और हरा सागर है जहाँ समुद्र है, जहाँ पर वो अकेली ही रहने वाली है जो एक मर्मेड की तरह है, और जो है अपने और धीरे धीरे अपने उसको एंजॉय करना चाहती है लाइफ को. देन व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So in the next paragraph, the poetess has asked Amanda whether she has completed her homework or not, whether she has cleaned her room, and the poet thinks whether she was quite sure that she hadn't clean her shoes also. So जो next paragraph है उसमें describe किया है कि जो poet जो है पूछती है उससे क्या तुमने अपना काम पूरा किया है अमेंडा से, क्या तुमने अपने रूम अपने घर को साफ़ किया है, क्या तुम जो है मैंने तुम्हें जो जूते साफ़ करने के लिए कहा था क्या उससे तुमने क्लीन किया है. देन I'm a orphan roaming the street. I pattern soft dust with my feet, bare feet. The silence is golden and the freedom is sweet. Then what happened? The next paragraph describes that she is an orphan and she wanders in the street, and she wanders in the street with naked legs. She is not wearing footwears, and she was walking in the dust, and she also says the silence is golden and the freedom is sweet. सो जो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे वो खुद को एक अनाथ समझती है और पूरे गलियों में नंगे पांव घूमती रहती है, और उसके अनुसार जो है जो चुप्पी है वो एक सोने के समान है, और फ्रीडम जो है बहुत ही मीठा होता है. देन व्हाट्स नेक्स्ट, द रीड आउट द नेक्स्ट डोंट ईट chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me, and I'm speaking to you, Amanda. Then what happened? She is also stopped, advised not to eat too much chocolates because of acne, pimples on face,
And then what happens, she even reminds her about the disease she's already having. She asks her to look towards her while she is talking to her. And what happened, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसे चॉकलेट खाने के लिए खाने से रोका जा रहा है, ताकि क्योंकि जो है उसकी वजह से उसे चेहरे पे पिंपल्स हो जाती है. एंड देन व्हाट हैपन, उसको जो है उसकी तरफ पोएट अपनी तरफ देखने के लिए कहता है जब वो उसे डांट रही है. देन व्हाट हैपन नेक्स्ट, I am a Rapunzel, I have not a care, like tar. Life in a tar is tranquil and rare. I will certain never let down my bright hair. और वो अपने आप को जो है लड़की अमांडा जो है वो कहती है कि मैं एक रेपुंजल हूँ, मैं मुझे किसी की परवाह नहीं है. और एक टावर, जहाँ पे वो एक टावर पे शांति और आनंददायक जीवन व्यतीत करना चाहती है. एंड वो कहती है कि मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को कभी भी नीचे नहीं आने दूंगी, ताकि कोई जो है ऊपर ना आ सके. देन द लास्ट पैराग्राफ, स्टॉप दैट्स slacking at once, Amanda. You always so moody, Amanda. Anyone would think I nagged at you, Amanda. एंड लास्ट में उसे जो है अपनी जो स्लकनेस है, उदासी को तोड़ने के लिए कहा जाता है. एंड उसे बोला जाता है कि तुम हमेशा जो है हमेशा इतनी ज़्यादा सैड क्यों रहती हो. कोई और कहा, जो पोइट कहती है, कोई सोचेगा कि अमेंडा मैं तुम्हारी छोटी छोटी गलतियाँ निकालती हूँ, बट इट्स नॉट ट्रू. सो पोएट जो है इसमें बेसिकली जो है इसकी अगर समरी की बात की जाए, इन द पोएम द अमांडा मदर वांट्स टू रिफॉर्म हर डॉटर एंड गिव हर सर्टेन एडवाइस. बेसिकली जो इस अमांडा की मदर है वो जो है उसे एडवाइस देना चाहती है और अपनी डॉटर की छोटी छोटी गलतियों को निकाल के उसको जो है ट्रांसफॉर्म करना चाहती है. शी टेल्स हर नाइदर टू बाइट हर नेल्स नॉट टू स्लग हर शोल्डर. उसे जो है हर जगह रोका जाता है अपनी नखून खाने के लिए, अपने अपने जो है शोल्डर उचकाने के लिए, हिलाने के लिए. शी वॉन्ट्स हर टू सिट स्ट्रेट इन. और वो चाहती है कि वो बीइंग एज अ चाइल्ड शी शुड लर्न टू सिट स्ट्रेट. देयर विल बी नन टू बॉदर हर. और वहाँ पे कोई नहीं होगा जो उसे परेशान करेगा. मोर ओवर शी इज़ नो लॉन्गर अ ह्यूमन बीइंग बट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ अ मरमेड. और उसे ऐसा लगता है कि उसने एक मरमेड का रूप ले लिया है. एंड ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग द रिलैक्सेंट फैशन विद इन द सी. और पानी की गहराइयों में वो जो है एकांत में तैर रही है. Amanda mother asked Amanda whether she has completed, and then she also asked her whether she has completed her work or not. And she also asked her whether she has cleaned her room or and she was also asked whether she has cleaned her shoes or not. Then Amanda what withdraws into again an imaginary world. Again दोबारा जो है Amanda जो है एक imaginary world में चली जाती है, जहाँ पे वो she feels herself like a orphan girl who's wandering in the street barefooted. And what happens, she designs a soft dust with the bare feet, thus making them drifter. Then Amanda mother forbids her. She is also stopped not for eating too much chocolate because of her acne. And what happened next? She at last she calls herself as a Rapunzel who's living in a tower alone. And she said that I'll now drop my hair so that nobody can come there. So this is all about the poem. And so you have to write all the question answer in your notebook. Thank you, children.